So first question is, in Young's double slit experiment, when the slit plane is illuminated with light wavelength lambda 1, it was observed that point P is closest point to central maxima O. तो basically यहाँ पे first maxima बनना चाहिए. Closest maximum to central maxima, that is first maxima, right? And जब यहाँ पर lambda 1 था. Now, where intensity was 75% of the intensity at O. Okay, wait. मैक्सिमा की बात नहीं कर रहा है. इस सेइंग कि जब लैम्डा 1 था तो यहाँ पे 75% इंटेंसिटी वाला फर्स्ट पॉइंट था. ओके, व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 2 इज यूज्ड, पॉइंट P हैपेंस टू बी द नियरेस्ट पॉइंट एट O वेयर इंटेंसिटी इज 50% ऑफ दैट एट O. फाइंड लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2. तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का पहले हम लोग फाई निकाल रहे हैं. And they have given us intensity का ratio. So intensity and phase difference, they are related in this fashion. So I am going for lambda 1. So intensity is equal to maximum intensity cos square phi by 2, right? So here it is 75%. So I by I max is kind of 3475. So is equal to cos square phi by 2. तो यहाँ से स्क्वायर रूट करके phi निकल जाएगा. So cos phi by 2 is √3/2 और यहाँ से 5/2 की वैल्यू आ गई 30 π/6 और यहाँ से ये आ गया π/3. तो phi आ गया हमारे पास π/3. तो फेज डिफरेंस इज π/3. अब हम लोग निकालते हैं पाथ डिफरेंस. तो 2π/λ टाइम्स पाथ डिफरेंस गिव्स यू फेज डिफरेंस व्हिच इज π/3. 30 डिग्री. ठीक है. So यहाँ से this is lambda 1. Okay. Now if you use different wavelength, then also the thing is कि part difference will remain same, right? उसको भी part difference doesn't have to do anything with lambda. It's just the इन दोनों length का difference, basically this additional length. So part difference will remain same. I am writing the same thing 2π/λ2 delta x is equal to and is equal to phi 2. That is our phi 2. और हमें ये गिवन है कि I is equal to, in case of lambda 2, I is equal to I max cos square kind of phi 2/2. ये वाला जो है, ये वाले टाइम पे हमें 50% दिया है. तो 50% मीन्स इट विल बी हाफ. तो हाफ का जब 1/√2 करोगे तो cos phi 2/2. तो दिस इज काइंड ऑफ 45. तो यहाँ से आ जाएगा π/8. तो phi 2 you will get π/8. एक सेकेंड. phi 2/2 is 1/√2. 50% पे रूट करोगे तो आ जाएगा एंड π/4. ठीक है, π/8 आ गया. तो यहाँ से π/8 रख दो और अभी लैम्डा का रेशियो निकाल लो. तो जस्ट डिवाइड देम. पार्ट डिफरेंस इज सेम फॉर बोथ. ये वाला हो गया तो यहाँ से 8/3 टाइप का आ रहा है. दैट इज ऑप्शन में है नहीं. जस्ट अ सेकेंड, कुछ गलत कैलकुलेशन किया है. 75% is 3/4. तो उसका रूट होगा 1/√3/2 cos. एक सेकेंड. cos 30 is that. So that is π/6. यहाँ पर π/8. एक सेकेंड, आई थिंक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है एंगल्स में. दिस इज 1/2. माय बैड, मैंने गड़बड़ किया है यहाँ पर. एक सेकेंड. phi 2 विल बी डबल ऑफ दैट, है ना. मैंने उल्टा कर दिया है. सो दिस इज 45 का ट्वाइस, दैट इज π/2. तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पे आ रहा है lambda 2 is to lambda 1, lambda 2 is to lambda 1 एंड यहाँ पे lambda 2 पर चला गया और यहाँ पे 3 नीचे ही रहेगा. एक सेकेंड, इट इज 2/3. तो हमें पूछा है lambda 1 2, तो ये 3/2 आ जाएगा उल्टा. मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी. 45 का भी हाफ कर दिया मैंने. 90 का हाफ करना था बेसिकली, मतलब 45 का ट्वाइस करना था. ओके, इज इट क्लियर? क्या क्या किया वापस से एक्सप्लेन करता हूं मैं एक बार. सो बेसिकली ओके, क्लियर है. अदर्स क्लियर? ठीक है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 सेकेंड.
Okay, next question is, in Young's double slit experiment, relative intensity at a point on the screen may be defined as the ratio of intensity at that point to the maximum intensity on the screen. Basically, I by I max, जो अभी फॉर्मूला लिखा था, this thing इसी को वो relative intensity बोल रहा है. तो when intensity is maximum, then relative intensity 1 है, और जब minimum है, तो relative intensity यहाँ पे 1/9 की 1 है, right? And it is varying between minimum intensity to a maximum intensity. फिर बोल रहा है light of wavelength 7500 angstrom passing through a double slit produces interference pattern of relative intensity variation as shown in the figure. Theta on the horizontal axis represent angular position of a point on the screen. फिर we have to find the separation d between the slits. तो एक सेकंड में इसको हटा रहा हूँ. So एक तो हमें चाहिए सेपरेशन डी बिटवीन द स्लेट. तो सी ऐसा स्क्रीन है और यहाँ पर ये स्मॉल डी है, तो यहाँ से आप बेसिकली एंगुलर किसी भी एंगल थीटा पर जाते हो, तो यहाँ पर विद थीटा इंटेंसिटी इज गिवन. तो जब थीटा 0.5 है तो इंटेंसिटी इज मिनिमम, राइट? और व्हाट इज द रिलेशनशिप? दैट पाथ डिफरेंस मिनिमम है तो डी साइन थीटा इज पाथ डिफरेंस, राइट? एंड दैट हैज टू बी लैम्डा बाय 2. तभी तो मिनिमा बन रहा है वहां पर 0.5 के ऊपर, राइट? सो यहाँ पर आई थिंक हमें डी निकालना है. साइन थीटा को हम लोग थीटा लिख देंगे क्योंकि बहुत स्मॉल है. 0.5 यहाँ पर डिग्री में है, तो इट्स लाइक डी एंड थीटा इज लाइक 0.5 डिग्री है. उसको कन्वर्ट में करो तो 180 इंटू पाई, एक सेकेंड, पाई is equal to lambda. Lambda भी given है 7500 एंगस्ट्रॉम. आंसर mm में देना है. into 10 raised to power minus 10 डिवाइड बाय 2. इसको सॉल्व करने से d आ जाएगा. कितना आता है देख लेते हैं. ये दोनों 0 और ये दोनों 0, 4 तो यहाँ पे फिनिश हो गए, तो -6 और करना पड़ेगा इसको सॉल्व. 9 into 75 by 5 pi. 5 pi is like 3.14 और इसको 5 से करो 15.7. so it's kind of 16 मान लो, और इसको 10 करते थोड़ा इंक्रीज. आंसर बहुत पास में, अच्छे से निकालना पड़ेगा. 15.7 ही रखना पड़ेगा. क्या किया मैंने? 0.5 डिग्री इज अ स्मॉलर एंगल, तो उसको मैंने साइन थीटा को थीटा लिख दिया. एंड आई सेज की पार्ट डिफरेंस हैज टू बी लैम्डा बाय 2. तो क्योंकि वहां पे मिनिमम मिल रहा है मुझे. इज इट क्लियर? यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 75 into 9 डिवाइड बाय 15.7 into 10 raised to power -6. ओके, नेक्स्ट वाला जो है, फाइंड द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स. So find the ratio of amplitudes of two waves producing interference pattern on the screen. यहाँ पे देखोगे तो अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रहता, बेसिकली दोनों आइडेंटिकल वेव्स रहती, तो हमें मैक्सिमा कितना मिलता है? लाइक ये अगर I0 है, ये भी I0 है, तो मैक्सिमा कितना मिलता है हमें? 4I0, और मिनिमम मिलता है 0 का. लेकिन यहाँ पे दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, तो इज आस्किंग की उनका रेशियो निकालना है. और इसका एक सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला है कि हमें पता है कि I max that is A1 plus A2 होल स्क्वायर उसके प्रोपोर्शनल होता है, और जब रेशियो निकाल देते तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे हट जाता है. ये आता है A1 minus A2 होल स्क्वायर. तो बस इसी से सॉल्व करना है. तो A1 plus A2 upon A1 minus A2 होल स्क्वायर is equal to maximum is 1 and minimum is like 1/9. और अगर इसको लिखना चाहते हो तो ये I0 है और ये I0 by 9 है. यू कैन राइट लाइक दैट ऑल्सो, राइट? वेयर I0 इज लाइक मैक्सिमम, तो वहां से I0 एनीवे कैंसिल आउट होने वाला है. तो इट इज काइंड ऑफ, और जब रूट करोगे तो 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दो A1 plus A2 is equal to 3A1 minus 3A2. तो यहाँ से आ जाएगा 2A1 is equal to 4A2. तो 1:2 का रेशियो दिख रहा है, 1/2, 2:1, 2:1. तो ये दोनों ऑप्शन में है. ये वाला आई थिंक 0.04 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा. इज दैट क्लियर? चलो, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर वाज ए, ठीक.
in Young's double slit experiment, the separation between two slits is small d given है 0.32 mm and the wavelength of the light used is lambda is equal to 5000 angstrom. Find the number of maxima in the angular range. यहाँ पे थीटा देना चाहिए, उन्होंने क्यों दिया है थीटा? बेसिकली एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है. आई एम जस्ट आई एक्सप्लेन कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि दिस थीटा, लेकिन बेसिकली माइनस थीटा से प्लस थीटा पे दिखाना है वेर साइन थीटा इज बेसिकली 0.6. तो उन दोनों के बीच में कितने मैक्सिमास बनते हैं वो निकाल रहे हैं हम लोग. तो मैं टॉप के लिए निकाल रहा हूं. तो पहले मैंने पार्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं. पार्ट डिफरेंस इज डी साइन थीटा. तो आई एम जस्ट राइटिंग कि डी साइन थीटा इज पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा. लेट्स से कि वहां पे एन मैक्सिमा बन रहा है, तो आई एम जस्ट राइटिंग कि इज इक्वल टू एन लैम्डा. तो डी गिवन है 0.32 into 10 raised to power minus 3 sin theta 0.6 given है is equal to n और lambda में यहाँ पे डिवाइड ही कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 5000 और एंगस्ट्रॉम है. जस्ट अ सेकेंड. सो n और एंगस्ट्रॉम 10 raised to power minus 10. सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं. पहले तो एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं. सो दिस इज लाइक 10,000. तो यहाँ से 4 जीरो चले जाएंगे, -6 बचेगा. ये 3 और चले जाएंगे, -3 बचेगा. और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो. 0.32 इंटू 1.2 इंटू 1000. कैलकुलेट करो कितना आता है ये. ये आता है 384 आ रहा है. सो इट्स 384. सो 384 इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे 384th मैक्सिमा बन रहा है. तो इसके ऊपर में 384 मैक्सिमा है, इसके नीचे में 384 और सेंट्रल वाला हम लोगों ने जो कैलकुलेट नहीं किया बेसिकली. तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 384 प्लस 384 प्लस 1. तो ये आ जाएगा आंसर 9370. ये वाला बी ऑप्शन. इज इट क्लियर? क्या क्या किया है मैंने? जस्ट डी साइन थीटा करके नंबर ऑफ मैक्सिमा फाइंड किया, उसको ट्वाइस किया क्योंकि दोनों तरफ है, और मिडिल में सेंट्रल वाला भी ऐड कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये वाला. Young's double slit experiment with identical slits, the intensity of maxima is I. P is the point on the screen where 10th maxima is formed with wavelength lambda. तो यहाँ पे सब given है. एक सेकेंड, ये दो हमारी स्लेट हो गई. ये हमारा P है जहाँ पे 10th मैक्सिमा है. ओके और एक सेकेंड. Then find the intensity at point P if the entire experimental setup is submerged in water of refractive index mu is equal to 4/3. Assume that intensity due to individual slits remains unchanged after system is dipped in water. तो एक सेकेंड, P के ऊपर 10th मैक्सिमा मिल रहा है. ठीक है. तो अगर मैं पार्ट डिफरेंस की बात करता हूँ, पहले मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो इसको जब वाटर में सबमर्ज करेंगे तो वेवलेंथ चेंज होने वाली है. और जो अभी हमने क्वेश्चन किया था थोड़ी सी देर पहले कि पार्ट डिफरेंस सेम रहेगा बट लैम्डा चेंज होने वाला है, तो उससे वहां पे फाई चेंज हो जाएगा. दैट्स आई एम डूइंग राइटिंग द सेम इक्वेशन. सो बेसिकली 2 पाई बाय लैम्डा 1 विच इज 6000 एंगस्ट्रॉम इनटू डेल्टा एक्स, जो भी है मैं लिख नहीं रहा, इज इक्वल टू. तो ये तो हो गया पुराना वाला पार्ट डिफरेंस. और यहाँ पे जब फाई हम लोग निकालते हैं, राइट, सो फाई कितना आता है? 10th मैक्सिमा है. तो 10th मैक्सिमा के ऊपर, फर्स्ट मैक्सिमा के ऊपर फेज डिफरेंस आता है 2 पाई. एक सेकेंड. तो 10th के लिए आने वाला है 20 पाई. ठीक है. और फिर नेक्स्ट वापस से कर रहा हूँ. 2 पाई बाय लैम्डा 2, न्यू लैम्डा 2 है, डेल्टा एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा फाई 2, जो मुझे फाई 2 भी चाहिए. पहले हम लोग लैम्डा 2 निकाल लेते तो फाई 2 निकालना इजी रहेगा. सो फाई 2 लैम्डा के लिए मैं ये वाला इक्वेशन यूज कर रहा हूँ. तो वेवलेंथ कम हो जाती है
v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो v कम होता है, वेव लेंथ भी कम होता है, तो 4/3 से कम हो जाएगा, तो लैम्डा 2 इज काइंड ऑफ लैम्डा 1 डिवाइड बाय 4/3, 3/4 ऑफ 6000। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लैम्डा 1 ही लिख लेते हैं, लैम्डा, एंड दिस इज 3/4 ऑफ लैम्डा। तो अब चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर से पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से फाई 2 आ जाएगा। तो एक सेकेंड, 3/4 इज इक्वल टू 25/2, तो फाई 2 आ जाएगा 80π/3। तो हमारे पास सेकंड वाला फेज डिफरेंस आ गया। जब वाटर में सबमर्ज करते हैं तो दोनों जो बेसिकली स्लिट 1 और स्लिट 2 जो waves जा रही है, उनके बीच में फेज डिफरेंस 80π/3। अब इंटेंसिटी हम लोगों को निकालनी है, तो हिस्से की अच्छा इंटेंसिटी निकालनी है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? इंटेंसिटी का फॉर्मूला इज I इज इक्वल टू I max इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। यहाँ पे हम लोग 80π/3 रखेंगे, उसका हाफ करेंगे तो 40π/3 आ जाएगा। तो हमें बस कॉस स्क्वायर 40π/3 निकालना है, और टाइम्स मैक्सिमम इंटेंसिटी विच इज I। एक सेकेंड, अज्यूम दैट इंटेंसिटी ड्यू टू मैक्सिमम की, सी द इंटेंसिटी ऑफ अ मैक्सिमम इज I। तो बेसिकली he has given this कि 4I डॉट जो है that is I, ओके। तो इसलिए मैंने टाइम्स I लिया है। अगर इंडिविजुअल का I रहता तो हम लोग 4I लिखते हैं यहाँ पर। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 8, एक सेकेंड, 13π प्लस 5/3। एक काम करो, 13 की जगह 13 ही लिख लेते हैं। इट्स 13π प्लस 5/3 और उसका कॉस और उसका स्क्वायर टाइम्स I। तो इट जस्ट π/3, कॉस π/3 का वैल्यू लिख लो, है ना, माइनस तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, बट कॉस ऑफ π/3 और उसका स्क्वायर। आंसर I/4। क्लियर? क्या क्या किया? किसी को डाउट है प्रोसेस के अंदर कहीं पर भी? जैस्मीन, हर्षिता, हर्षा, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Coherent light of wavelength lambda is equal to 500 nanometer is sent through two narrow slits in a large vertical wall. If two slits are 5 micrometer apart, तो ये वाली distance 5 micrometer है. In front of the wall there is a semi-cylindrical screen with its horizontal axis at the line running on the wall parallel to the slits and midway between them. Radius of cylinder is 2 meter. Basically वाली distance 2 meter है. And he's saying you find the vertical height of the second order interference maxima from the center O of the screen in meters. So basically एक काम करते हैं, सब पहले मैक्सिमा बनाते हैं. तो suppose this is the screen and यहाँ से ऐसे जाके यहाँ पर मैक्सिमा बनता है. If मैक्सिमा बनता है तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा? 2 लैम्डा, राइट? बिकॉज सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा बन रहा है. तो आई एम जस्ट राइटिंग की पार्ट डिफरेंस दैट इज d sin थीटा इज इक्वल टू, और ये एंगल थीटा है, सो d sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा. तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग. तो sin थीटा कम्स टू बी 2 लैम्डा विच इज 2 into लैम्डा 500 नैनोमीटर, 500 10 raised to power minus 9 by small d which is 5 micrometer, minus 3 बचेगा,
this is kind of 1000 and 1000, so it's kind of 1/5. sin theta is 1/5. अब यहाँ पर ये वाला h पूछ रहा है, तो हम लोग फिर से sin थीटा यूज कर लेते हैं। तो sin थीटा is h/2 which is 1/5, तो h की वैल्यू आ जाएगी 2/5 which is 0.4, और मीटर में आएगी क्योंकि 2 is also in meter. Is that clear? ये वाला आ जाएगा हमारा 0.4 मीटर. Any issue? Is it clear? Moving to next question. आंसर भी आ जाएगा. नेक्स्ट आता है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर नेम्ड A and B are two transparent films of thickness T1 and T2 having refractive indexes mu1 and mu2 placed in front of slits A and B respectively. यहाँ पे T1 रखा है mu1, यहाँ पे रखा है T2 mu2, और फिर उसके बाद लिखा है T1 is less than T2 and mu1 T1 is equal to mu2 T2. In which direction will the central maximum shift after the two films are placed? तो बेसिकली आइडिया ये है कि आप अगर फिल्म प्लेस करते हो तो the ray which is coming from here lags, right, वो पीछे रह जाती है थोड़ी सी, और इवेंचुअली उसको कवर करने के लिए मैक्सिमा पूरा पैटर्न, बेसिकली एंटायर पैटर्न शिफ्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, और जो पार्ट डिफरेंस होता है दैट इज mu minus 1 times t, दैट इज द पार्ट डिफरेंस, दैट इज लाइक mu t minus t, राइट. तो पहले मैं दोनों के लिए निकाल रहा हूँ कि कौन ज्यादा पीछे रहता है, तो आई एम जस्ट राइटिंग कि डेल्टा x1 तो विच इज mu1 minus 1 into t1, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ mu1 t1 minus t1. डेल्टा x2 आई एम राइटिंग कि mu2 minus 1 t2, तो दैट इज mu2 t2 minus t2. अब देखो ये दोनों तो सेम है, एंड t1 इज लेसर, ये कम है, तो ये डेल्टा x1 विल बी ग्रेटर. जब डेल्टा x1 ज्यादा है तो पूरा पैटर्न अपवर्ड शिफ्ट होगा, दैट इज टुवर्ड्स a. इज दैट क्लियर? ऑप्शन ए इज करेक्ट. आयुष, बी नहीं होगा. सी वो उसका जो पार्ट डिफरेंस है वो ज्यादा है, बेसिकली वो ज्यादा पीछे रह रहा है, तो उसको कवर करने के लिए नीचे वाली रे ज्यादा ट्रेवल करेगी. आयुष, डाउट है तो बताओ. डिड यू गॉट इट? नो, लेट मी री एक्सप्लेन. देखो जस्ट 1 सेकेंड, पहले हम लोग एक सिंगल स्लैब से एक्सप्लेन करते हैं. तो बेसिकली आइडिया ये है कि without any slit they have to travel equal length, right? Now if you introduce a slab over here, so this ray of light is traveling like mu times t distance. Here it is traveling like t distance. I am assuming कि ये ज्यादा है क्योंकि mu generally greater than 1 होता है, तो this is traveling more distance. तो उसको कवर करने के लिए वो यहाँ पर कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है और नीचे वाली ज्यादा कवर करती है, तो पूरा पाथ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तो जो ज्यादा रहता है पाथ उसकी तरफ शिफ्ट होगा. नाउ आई एम सेइंग कि जो डेल्टा x1 है बेसिकली वो ज्यादा है, तो एंटायर पैटर्न इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स ए. अगर दोनों इक्वल होते तो पैटर्न वहां का वहीं पर रहता, राइट? चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन फिगर shown O is the point source of light and S is a screen placed at a distance L from the source. Intensity of the light at point A on the screen is due to source is 81I. तो यहाँ पर 81I is the intensity. फिर क्या हो रहा है? And now a large mirror M is placed behind the source. तो पहले ये मिरर था नहीं, बाद में प्लेस किया हम लोगों ने. तो जब इसे प्लेस करते हैं, now he's saying कि the mirror reflects 100% of the light energy incident on it. Calculate the intensity at point A now. तो अभी निकालना है, बाद में जब मिरर प्लेस कर दिया है तो इंटेंसिटी कितनी होगी. नाउ अगर आप देखोगे तो मिरर के लाइक इफ वी आर प्लेसिंग द मिरर, तो व्हाट विल हैपन, द लाइट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम हियर इज फाइन, तो यहाँ पे जाके कुछ एडिशनल लाइट और आ जाएगा,
तो इंटेंसिटी हैज टू इंक्रीज। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया और ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अभी ये दो ऑप्शन हमारे पास बचे। लाइक इफ ऑल थ्री ऑप्शंस लाइक इफ देयर आर थ्री ऑप्शंस लेसर, तो फिर आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो। नाउ सी इंटेंसिटी कैसे डिक्रीज होता है, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/d², बिकॉज रीजन ये है कि एनर्जी स्फेरिकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होती जाती है, राइट? So it's like 1/r² or 1/d². So intensity proportional to inversely proportional to d², or you can say proportional to 1/d². Now पहले वाले के लिए इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? L. Okay. Now सेकेंड वाले के लिए जो एडिशनल लाइट है which is coming to it, see the thing is कि light which is going at any other angle will be reflected like this. It won't be reaching at A. तो एक ही लाइट है जो स्ट्रेट जा रही है, वही वापस आएगी, तो इट इज ट्रेवलिंग 3L. ओके, तो पहले उसने L डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमें मिलता है 81I. वेट, वेयर I is some unit. ठीक है, अभी वो 3L ट्रेवल करेगा, तो 3L ट्रेवल करने से कितना टाइम रिड्यूस होगा, तो उसका स्क्वायर करो, दैट इज 9. इट्स काइंड ऑफ लाइक उसका 1/9 रिड्यूस होगा, तो डिवाइड बाय 9 करो, तो 9I बचना चाहिए। जो 3L ट्रेवल कर रहा है वो 9I इंटेंसिटी बचेगा, जो L ट्रेवल कर रहा है वो 81I है। अब दोनों मिलके जो हमें है 90I का इंटेंसिटी दे देंगे। इज दैट क्लियर? जब डिस्टेंस ट्रेवल 3 टाइम्स हुई तो इंटेंसिटी शुड डिक्रीज बाय लाइक 9 टाइम्स। तो आंसर इज ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A soap bubble has thickness 90 nanometer and its refractive index is mu is equal to 1.4. What color does the bubble appear to be at a point on its surface closest to an observer when it is illuminated by white light? तो ये वाले में बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो जब एक बबल है विच इज थिन और हम लोग बोले कि नियरेस्ट, एक सेकेंड, what color does the bubble appear to be at a point on its surface closest to an observer? तो बेसिकली वो यहाँ की बात कर रहा है। अब होता क्या है कि जब लाइट यहाँ से एंटर करती है तो यहाँ से एक लाइट तो वापस रिफ्लेक्ट होके आती है और दूसरी लाइट क्या करती है, यहाँ से ऐसे आती है, और इन दोनों लाइट के बीच में इंटरफेरेंस होगा। अब अगर इंटरफेरेंस होने के बाद जहां पर कंस्ट्रक्टिव हो गया वो कलर मतलब डोमिनेट करेगा, राइट, दूसरे कलर्स को, और उसी कलर का हम लोगों को लाइट दिखने वाला है। इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले हैं? सो इसकी लाइक एज यू कैन सी हियर इट इज थिन फिल्म इंटरफेरेंस एंड परपेंडिकुलर इंसिडेंस वाला केस है। तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस करा रहे हैं हम लोग, और उसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। सो थिन फिल्म इंटरफेरेंस में जब एक रे आती है तो एक तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो जाती है, जब रिफ्लेक्ट होती है तो पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है उसके अंदर, क्योंकि जब डेंसर मीडियम से लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो पाई का फेज डिफरेंस आता है। दूसरी लाइट एंटर करती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। अब है क्या कि यहाँ पे हमारे पास वाटर है, यहाँ पर हमारे पास एयर है, और यहाँ पे वापस से एयर। दिस टाइम इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेयरर मीडियम, और जब रेयरर मीडियम से वेव रिफ्लेक्ट होती है तो कोई फेज डिफरेंस नहीं आता, और यहाँ पर वापस से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है अगेन कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा। अब अगर पार्ट डिफरेंस की बात करें तो दिस इज T विच इज थिकनेस, तो ये बेसिकली 2T डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एडिशनल, राइट, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो मैं म्यू टाइम्स कर रहा हूँ, लाइक बेसिकली कंपेरेबल टू एयर कर रहा हूँ, सो म्यू टाइम्स T, तो 2 म्यू T इज द पाथ डिफरेंस, और ये 5 फेज डिफरेंस ऑलरेडी आ गया था। अब अगर ये हाफ, ये भी अगर पाई कवर कर ले तो दे विल बी अगेन इन सेम फेज, तो इसके जो करेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए पाई, 3 पाई, 5 पाई। और अगर मैं वेव इन टर्म्स ऑफ लैम्डा बात करूं या पार्ट डिफरेंस बात करूं, तो पार्ट डिफरेंस जो है दैट इज 2 म्यू T, दैट हैज टू बी मल्टीपल ऑफ काइंड ऑफ लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 फॉर कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव। ओके, इस टाइप का आना चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, हमें थिकनेस पता है, तो ये पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, और वेवलेंथ नहीं पता। ठीक है, हम लोग जस्ट चेक कर लेते कि कौन सी वेवलेंथ के लिए मैक्सिमा आने वाला है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि इज इक्वल टू m प्लस हाफ टाइम्स m स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टाइम्स लैम्डा।
ओके इज इक्वल टू 2 म्यू टी। अब हम लोग एक काम करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू टी, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू टी अपॉन m प्लस हाफ। तो यहाँ पर क्या होगा कि वैल्यूज रखनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा वेवलेंथ कितना आता है। जस्ट अ सेकंड, m की वैल्यू 0 रखते हैं, पहले 2 म्यू टी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू म्यू विच इज 90 नैनोमीटर, 90 मैं नैनोमीटर लास्ट में लिख रहा हूँ, और t विच इज थिक, एक सेकंड, 2 म्यू 1.4 में भूल गया, 2 म्यू टी अपॉन m प्लस हाफ इज लाइक 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, m इज इक्वल टू 0 के लिए, तो इट गिव्स मी 1/8 of, एक सेकंड, मल्टीप्लाई 40 into 252 नैनोमीटर, पहला ये आता है। अब जब 1 रखेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो इट्स लाइक बाय, और डिक्रीज होने वाला है, m की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ लैम्डा की वैल्यू फर्दर डिक्रीज होने वाली है, और हमारी पास ऑप्शन है 400 नैनोमीटर, दैट इज वायलेट लाइट टू 700 नैनोमीटर के आसपास। एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? जस्ट अ सेकेंड, एक बार मुझे रीचेक करने दो। फर्स्ट वेवलेंथ विल बी 504, सेजल बोल रही है, बट इज गोइंग टू डिक्रीज ओनली राइट बाय 5 न्यू वेवलेंथ अगर निकालेंगे, m इज इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे तो, एक सेकेंड, मैंने मल्टीप्लिकेशन गलत किया है, एक सेकेंड, सॉल्यूशन चेक करते हैं, कुछ गड़बड़ है। ये हमारा रिजल्ट भी आ गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 म्यू टी बाय 3 ये आ रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है कुछ, अच्छा माय बैड, कैलकुलेशन मिस्टेक क्या मैंने, सी द फर्स्ट वन विल बी 2 म्यू टी बाय हाफ, तो यहाँ पे और ट्वाइस होगा, तो इट्स लाइक 4 इंटू 90 इंटू 1.4 नैनोमीटर, फिर डिक्रीज ही होने वाली है राइट, बाय 3, फिर बाय 1, 3, 5 करोगे, तो ये वाली जो आएगी ये भी 4 टाइम्स 504 जो सेजल बोल रही थी, यस ये वाली आएगी 504 नैनोमीटर, फिर इसका 1/3 करके विजिबल से भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि विजिबल इज लाइक ये वाला जो होता है वो हमारा 400 नैनोमीटर है, और ये हमारा 700 नैनोमीटर है अप्रोक्सीमेट, तो 500 याद करना पड़ेगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन, ये ग्रीन का है बट आपको याद होना चाहिए ग्रीन का वेवलेंथ, तो ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आंसर सी, आंसर इज नॉट वायलेट नॉट रेड, ये श्योर है, ग्रीन और ब्लू के अंदर आपको अगर याद नहीं है तो फिर इश्यू होंगे। आंसर इज ग्रीन, सो ग्रीन वाला टिक करना पड़ेगा। सी अब ग्रीन का कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ से जो व्हाइट लाइट आ रही है उसमें से ये वाली जो थिकनेस है उस हिसाब से ग्रीन का कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो प्रोमिनेंटली ग्रीन कलर ज्यादा दिखेगा। इज दैट क्लियर कॉन्सेप्ट? अगर वेवलेंथ प्रॉपर्ली हर एक की गिवन है तो हम लोग और प्रॉपर्ली बता सकते हैं, नहीं तो वेवलेंथ याद करनी पड़ेगी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A parallel beam of white light falls from air
एक सेकेंड. A parallel beam of white light falls from air on a thin film whose refractive index is √3. The medium on both sides of the film is air. फिर से same question, same concept लग रहा है. Then the angle of incidence is 60 degree. तो ये 60 degree है. और find the minimum film thickness if the reflected light is most intense for lambda is equal to this. Same concept करना है. अब इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस इज नॉट परपेंडिकुलर इंसिडेंस. तो यहाँ पे प्रॉपर्ली आई निकालो. एक सेकंड, इसके लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम बेटर बना देता हूँ. डायग्राम बेस्ड कैलकुलेशन ज्यादा होने वाली है. तो लाइट कुछ ऐसे आने वाली है क्योंकि मीडियम डेंसर है. पहले हम लोग एंगल निकाल लेते हैं. तो दिस इज 60. तो यहाँ से मैं लिखूँ दिस इज √3 एंड दिस इज 1. सो 1 sin 60 इज इक्वल टू √3 sin r. तो ये होता है √3/2. ये होता है हाफ. sin 60 √3/2 ये कैंसल. हाफ r की वैल्यू आ गई 30 डिग्री. ना 2μt से नहीं करना है. जस्ट अ सेकेंड. अब यहाँ से वापस कैसे जाएगी, ऐसे निकलेगी. अब यहाँ से रे 60 पे जा रही है. इन दोनों के बीच में हमें करना है पार्ट डिफरेंस फाइंड. नाउ पार्ट डिफरेंस यहाँ पे दो पार्ट डिफरेंस है. एक तो अंदर का पार्ट डिफरेंस और एक बाहर का ये वाला पार्ट डिफरेंस. दोनों फाइंड आउट कर रहा हूं मैं. सो ये वाला 90 डिग्री है. यहाँ से आगे दोनों सेम रे जा रही है. नाउ दिस इज 60. तो ये 60/30 ये वाला हो जाएगा 60. ये वाली टी थिकनेस है. और अंदर वाला अगर हम लोग करेंगे तो इसको x. तो x cos 30 इज इक्वल टू t. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी t sec 30. और ये x और x 2x हो रहा है. और यहाँ पे म्यू के अंदर ट्रेवल हो रहा है तो मैं म्यू से मल्टीप्लाई करूंगा इसे, क्योंकि अंदर एयर में ट्रेवल लाइक आई एम कंपेयरिंग इट टू एयर वाला. तो आंसर इज 2μt sec 30. ये वाली रे पीछे रह रही है ना. फिर यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ से स्टार्ट करती है बट ये ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है. तो ये इसमें ये वाली पीछे रह रही है. तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग ये वाली लेंथ. लेट्स कॉल इट इस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ z. तो ये आ जाएगा z cos 60. ये वाली आ जाएगी z sin 60. और z की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से फिर से करते हैं x की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो इन टर्म्स ऑफ t ऑफ दिस बढ़ेगा. तो x इज इक्वल टू t sec 30. एक काम करते हैं ना, ये वाली निकाल लेते हैं, उसके ट्वाइस कर देंगे. सो दैट इज 10/30 z/2. z/2/t इज इक्वल टू 10/30. तो t 10/30 दो t आ रहे हैं. t 10/30 2t 10/30 इज z. तो ये वाली वैल्यू आ गई 2t 10/30 into sin 60. और पहले मैं दोनों वैल्यू निकाल के फिर प्रॉपर्ली सब्ट्रैक्ट ही कर लेता हूँ. पार्ट डिफरेंस एक बार पूरा मैं एक साथ लिख देता हूँ. पार्ट डिफरेंस कम्स टू बी 2μt sec 30 minus 2t 10/30 sin 60. सॉल्व कर लो. बाकी की चीजें रिमूव कर रहा हूँ एक बार मैं. अभी इसको λ/2 के इक्वेट करेंगे हम लोग. 2μ कितना है √3. thickness is given or not. थिकनेस निकालनी है t और बोल रहा है मिनिमम. तो एक काम करते हैं t कॉमन ही ले लेते हैं. t कॉमन 2√3 sec 30 माइनस t तो कॉमन ले लिया है 2 10/30 1/√3 sin 60 √3/2. ये तो 1 आ गया. ये आ गया 4 - 1 3t. अब 3t को मुझे इक्वेट करना है इधर λ/2 3 λ/2
और जब मुझे थिकनेस मिनिमम रखनी है तो मैं लैम्डा बाय 2 चूज करूंगा, राइट। तो टी इज लैम्डा, लैम्डा कितना है 600, तो आंसर आ जाएगा बी 100 नैनोमीटर। क्लियर? क्या क्या किया? अगर कोई बोल रहा है कि वाई नॉट पार्ट डिफरेंस इज 2 म्यू टी, तो आई एम सेइंग कि दैट इज ट्रू ओनली फॉर परपेंडिकुलर इंसिडेंस। यहाँ पे प्रॉपर एंगल गिवन है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा आपका। इज दैट क्लियर? आंसर की करेक्ट है यहाँ पर। जब भी बिगर एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री दिख जाए देन ऑलवेज गो फॉर ज्योमेट्री, है ना, इन वेव ऑप्टिक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A thin film having refractive index mu is equal to 1.5 and thickness 900 nanometer has air on both sides. It is illuminated by white light falling normally on it. Assume that visible range is this. Which wavelength are brightest in the interference pattern? Reflected patterns of reflected light. सेम चीज फिर से करनी है। इस बार इसने बोला है कि falling normally to it. तो basically 2 mu t is equal to lambda by 2, 3 lambda by 2 and so on. वही काम करना है फिर से। So सारी चीजें गिवन है, म्यू है, टी है एंड बस और कुछ चाहिए नहीं। हमें आंसर निकालना है इस रेंज के अंदर, तो वैल्यूज रखते जाओ। एम की पुराना वाला फॉर्मूला फिर से वही, एम प्लस हाफ इंटू लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 2 म्यू टी और इनफैक्ट 4 म्यू टी बाय 2m प्लस 1। और m की वैल्यू 0 से रखना स्टार्ट करो जो भी सेट होता है। तो पहले मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। m इज इक्वल टू 0 पे लैम्डा आ जाएगा, तो और i डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 5 ऐसे करना शुरू कर देंगे। तो लैम्डा आ जाता है 4 म्यू टी, 4 म्यू 1.5, t इज 900, तो 3 by 6 5400 नैनोमीटर। सारे आंसर नैनोमीटर में। अब हम लोग m इज इक्वल टू 1 पे स्टार्ट करते हैं। लैम्डा आ जाएगा डिवाइड बाय 3, तो आ जाएगा 1800। अभी भी रेंज के बाहर है। और 5400 बाय 5, तो 1080 नैनोमीटर। ठीक है, और करो 3 पे। क्वेश्चन लेंदी और कुछ है नहीं, 7 लगा दो। सिक्स 600 के आसपास आंसर आ जाएगा। अभी एक सेकंड, 700 771 ऑप्शन आ गया ये वाला। 1 पे सेट हो रहा है या कुछ और आ रहा है? 770 तो नहीं आ रहा है ना। 50 फिर अगेन, हाँ ठीक है 771 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। सेकंड वाला निकालो, फिर बाय 9 करेंगे। एक और कर लेते हैं, आई थिंक 600 दूसरा ऑप्शन कैंसिल होगा। क्वेश्चन लेंदी है और कुछ नहीं है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? You just have to go on and like you have to cancel other options और एक ही ऑप्शन बचेगा। तो आई थिंक 500 वाला कैंसिल हुआ क्योंकि 600 दोनों है। फिर 491 यहाँ पे ज्यादा अच्छा था। आई थिंक डी आ जाना चाहिए। चेक करते हैं, गैस मारा है मैंने। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर डी है। In Young's double slit experiment, a monochromatic light of wavelength lambda from a distant point source is incident upon 2 identical slits. The interference pattern is viewed on distant screen. Intensity at point P is equal to intensity due to individual slits, equal to I naught. तो यहाँ पर I naught है, यहाँ से भी I naught आ रहा है, और ये कोई पॉइंट P है तो यहाँ पे भी इंटेंसिटी I naught है। नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, है ना। हाफ बेसिकली सेम है। देन
और क्या बोल रहा है, intensity at point A equal to individual slit. A thin piece of glass of thickness T of refractive index mu is placed in front of the slit which is at a larger distance from P. तो basically यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग, तो ये और पीछे पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना. Then perpendicular to the light path, assume no absorption of light energy by glass, write intensity at point P as a function of T. ऑप्शन ठीक है, स्टार्ट करते हैं. पहले तो हम लोग ऑलरेडी कितना वहां पे फेज डिफरेंस है या पार्ट डिफरेंस है वो निकाल लेते हैं. ठीक है, और इसने डेल्टा दिया, आई थिंक डेल्टा इज द पार्ट डिफरेंस. तो हम लोग ऑलरेडी जो पार्ट डिफरेंस है वो निकाल रहे हैं यहाँ पे. पहले I इज इक्वल टू विच इज आई नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटेंसिटी विच इज 4 I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2. हेलो, हेलो, एक बार राइटिंग थोड़ा सा ब्लैंक कर, मतलब लाइक ब्लिंक कर दो ताकि पता चल जाए ऑडिबल है या नहीं. आई थिंक कनेक्शन वाज इंटरप्टेड. ठीक है, जस्ट अ सेकंड, आई एम रीशेयरिंग. ये क्वेश्चन स्टार्ट से ही करना है या फिर लाइक कुछ सुना था? स्टार्ट से करना है या फिर कुछ पढ़ लिया है, लाइक कर लिया है? जस्ट फ्रॉम स्टार्ट और लाइक आई शुड डायरेक्टली एक्सप्लेन द आंसर? क्वेश्चन में वापस एक्सप्लेन कर लेता हूँ क्विकली. सो देयर आर टू स्लिट्स और दोनों का इंडिविजुअल इंटेंसिटी इज आई नॉट. देयर इज अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन विच इज पी. ओके, एंड यहाँ पर भी इंटेंसिटी आई नॉट है. नाउ यहाँ पर हम लोग एक दूसरी, यहाँ पर एक द जो फर्दर स्लिट है फ्रॉम पॉइंट पी, we are introducing a glass slab of refractive index mu and t thickness in between it. So he is asking कि यहाँ पे intensity we have to write at point P as a function of t. T is the thickness of glass slab. तो वो निकालना है. What I am doing is कि पहले से ही phase difference कितना है वो निकाल रहा हूँ. तो I is which is I naught is equal to maximum intensity times cos square 5/2. So I am just finding कि initially phase difference कितना है already. तो that is 1/4, हाफ रूट कर दो, हाफ आ जाएगा cos 5/2. और यहाँ से दिस इज cos 60, तो 5 like 120. दिस एंटायर थिंग इज 60, तो ये हो जाएगा 120 2π/3. यहाँ से 5 आ गया कि इतना फेज डिफरेंस तो ऑलरेडी है. अब आप अगर और ये इंट्रोड्यूस कर देते हो तो क्या होता है, देखो यहाँ पर ये वाली रे आगे है, राइट, and phase difference is 2π/3. It's already ahead, so I'm just writing ki phase, I'm writing phi dash ki phase difference kitna hoga, to 2π/3 is already there, plus now new phase difference will be added kyunki और part difference aa raha hai, तो additional part difference kitna hai, that is mu minus 1 into t. और अगर इसकी corresponding 2π/λ कर देंगे तो that will be additional phase difference. तो जो एडिशनल फेज डिफरेंस आएगा दैट विल बी 2π/λ टाइम्स mu minus 1 into t. ये है नया फाई डैश. और अगर मुझे इंटेंसिटी लिखना है एज अ फंक्शन, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एज अ फंक्शन ऑफ t, देन आई शुड राइट कि इंटेंसिटी एट पॉइंट p इज इक्वल टू 4I नॉट cos स्क्वायर फाई डैश बाय 2, वेयर फाई डैश इज दिस थिंग. ऑप्शन थोड़े से गलत है क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ फाई डैश का वैल्यू दिया है. like as you can see 2π/3 2π mu minus, ये वाला ठीक लग रहा है, ये वाला रॉन्ग है, ये वाला यहाँ पे रॉन्ग है और ये वाला यहाँ पे रॉन्ग है. सी आंसर टिक करेंगे, बट सी इज नॉट इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट जस्ट फेज डिफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट. Intensity as a function of time will be 4I naught cos square phi dash by 2, where phi dash is my options. Is it clear?
इज इट क्लियर? डाउट है तो बताओ। हेलो हेलो, इज इट ऑडिबल? हेलो, इज इट क्लियर? जस्ट 1 सेकेंड, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इंटरनेट अनस्टेबल दिखा रहा है। Is there any doubt? Please ask. If there is any doubt, please ask. Otherwise, we'll move to next question. Moving to next question. Next question is, in shown figure, S1 and S2 are two identical coherent sources of sound separated by a distance d. A receiver moves along line XY, which is parallel to line S1, S2, to detect the intensity of sound at various points on the line. Distance of the line XY from line S1, S2 is capital D, which is way greater than D. Small d. Point O is the foot of perpendicular. Basically, double slit interference का same setup है ना. Distance of the first maxima, the first intensity. एक सेकेंड, O is Y. तो बेसिकली यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमा मिलता है. And find the percentage change in the value of Y if the temperature of the air increases by 1%. So basically Y का हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से फॉर्मूला लिख रहे हैं, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. नाउ द थिंग इज कि मुझे परसेंटेज चेंज इन Y चाहिए, तो बेसिकली डेल्टा Y बाय Y. नाउ ये चीज और ये चीज कांस्टेंट है, तो इट विल बी इक्वल टू डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा. नाउ V इज इक्वल टू F. Hello, is it audible? हर्षा, सेजल, चलो एक क्वेश्चन और करके एंड करेंगे, है ना. जस्ट 1 सेकेंड. ओके, क्वेश्चन विजिबल है ये. ओके, आई विल जस्ट री एक्सप्लेन द क्वेश्चन. कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पूरा सेटअप इज सेम एज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. नाउ इंस्टेड ऑफ लाइट वी हैव टू साउंड सोर्सेज ओवर हियर, S1 एंड S2. और ये बोल रहा है कि यहाँ पर एट डिस्टेंस y वी आर गेटिंग फर्स्ट मैक्सिमा. ओके, नाउ ही इज सेइंग कि परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ y टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेस बाय 1%. ना मुझे चाहिए परसेंटेज चेंज इन y. सो y का अगर मैं बेसिकली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से वैल्यू लिखूं तो इट इज लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d. नाउ द थिंग इज कि परसेंटेज चेंज की बात चल रही है, तो ही इज आस्किंग मी डेल्टा y बाय y, राइट. और यहाँ पे अगर देखोगे तो d and d आर कांस्टेंट, दे आर नॉट चेंजिंग, राइट. सो it will be delta lambda by lambda. अब v is equal to f lambda has to be true क्योंकि sound is also wave. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, साउंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो डेल्टा v बाय v इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा. अब v क्यों चेंज होगा? बिकॉज v इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. रिमेंबर दिस, v जो रहता है वो टेम्परेचर की अंडर रूट गामा आर टी बाय एम नॉट. सो v इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. Now delta V by V will be kind of half of delta T by T. ओके, तो यहाँ से रिवर्स जाना शुरू करते हैं. तो डेल्टा T by T is given
that is like increase in 1%, तो ये kind of 0.01 है, और by 2 लिखा हुआ है तो this is 0.005 और पॉजिटिव है, तो डेल्टा टी बाई टी से डेल्टा वी बाई वी इज 0.05 और यहाँ से डेल्टा लेमडा बाय लेमडा और डेल्टा लेमडा बाय लेमडा से डेल्टा वाई बाय वाई, तो डेल्टा वाई बाय वाई कम्स टू बी 0.005. So that is kind of 0.5%. Is that clear? Is it clear? Any doubt? Is it clear? चलो, मूविंग टू, अब क्लास एंड करते हैं, टाइम इज ओवर. कोई और डाउट है तो पूछ लो, I'll end the class. Answer is A. Class end